हेलो स्टूडेंट, आज का जो स्टोरी है जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चिपको मूवमेंट और ये स्टैंडर्ड 4 के लिए है। चैप्टर 8 है। ओके। और इस स्टोरी का जो लीड कैरेक्टर है वो है अमृता विश्नोई। तो चलो पहले स्टोरी को पढ़ लेते हैं और उसका मीनिंग समझ लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Once upon a time, in a small village in India, lived people who did not like hunting of animals and cutting down of trees. They loved both animals and trees. People lived happily in this village. Each person planted a tree and took good care of it. This village was under the rule a king who wanted to build a palace for himself and his family. So he ordered his soldiers to bring wood from the forest. The soldiers started their search for wood, and they found that this small village was full of trees. The soldier went there, but as soon as they started to cut the tree, a voice said, "Stop! Please do not cut the tree." It was Amrita Vishnoi, a woman who had planted the tree. She stood in front of the tree, hugged it with both her hands and said, "Before you cut this tree, you will have to cut me. Are you going to sacrifice your life for this tree?" asked the soldier. तो यहाँ तक का जो मीनिंग है वो मैं पहले बता देती हूँ कि एक विलेज था जहाँ राज करते थे एक किंग या फिर राजा, पर वहाँ के विलेज के जो लोग थे वो लोग बहुत ही ज्यादा पेड़ पौधे से प्यार करते थे, एनिमल से भी प्यार करते थे और वो चाहते थे कि कोई भी पेड़ पौधा को ना काटे एंड एनिमल को भी बिना बेवजह से ना मारा जाए। तो एक दिन क्या हुआ, जब राजा को लगा कि वो अपने लिए एंड अपने फैमिली के लिए एंड अपने पत्नी के लिए भी एक पैलेस बनाएंगे, तो उनको बहुत सारी लकड़ी की ज़रूरत थी और राजा ने ये सोचा कि सोल्जर को बताने से सोल्जर लकड़ी का व्यवस्था कर देंगे। तो वो सोल्जर को भेजे कि जहाँ पे ज़्यादातर लकड़ी मिले तो वहाँ से लेके आने के लिए। तो सोल्जर गए और सर्च किए और उनको मिला ये विलेज जहाँ पे ये लोग रहते थे, क्योंकि वहाँ का कोई भी पेड़ पौधा कोई काटता नहीं था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ मिला और लकड़ी भी। तो वो लोग काटने के लिए उत्सुक हो गए एंड वो स्टार्ट कर चुके थे। तब तक आई अमृता विश्नोई, तो उन्होंने ही रोका और उन्होंने यही कहा कि अगर पेड़ को काटना है तो पहले उनको मारना पड़ेगा। तो यहाँ तक जो स्टोरी है हम लोग जान रहे हैं और उसके बाद जो सोल्जर है वो बता रहे हैं कि आप क्या एक पेड़ के लिए अपना जीवन त्याग दे सकती है, वो सैक्रिफाइस कर सकती है। तो यहाँ तक का मीनिंग यही है। तो चलो हम स्टोरी के आगे के पार्ट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे अमृता विश्नोई जो है वो बता रही है कि यस आई एम, मैं ये करूंगी, बिकॉज आई लव दिस ट्री एज मच एज आई लव माई फैमिली, came the prompt reply. The soldiers explained to her many times that it was the king's order to cut the tree and that it was useless giving her life for the tree. But Amrita Vishnoi refused to leave the tree. The soldiers became furious and cut the tree. Amrita, the tree lover, died within a short time soon. Many people got involved in this struggle. This went for many days. The brave men and women of the village died for the love of trees. They hugged the trees to prevent them from being cut, giving rise to the Chipko movement. When the king came to know about this struggle, he was very sorry. He went to see the people of the village. He said that he was really sorry and promised to give them gold coins. But the people refused and said,
Your Highness, if you want to give us something, then please ban. If you want to give us something, then please ban the cutting of these trees, and hunting of animals. The king accepted their wish. After that day, the people in the village lived happily, but they also remembered their heroes who sacrificed their lives for the love of trees. तो यहाँ का जो फुल मीनिंग है, यहाँ पे बिश्नोई बता रही है, अमृता बिश्नोई, कि हाँ मैं तैयार हूँ कि इस एक पेड़ के लिए अपनी जीवन को त्याग देने के लिए। तो बहुत ज़्यादा सोल्जर जो है वो लोग समझाए उनको कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर उन्होंने माना नहीं। उन्होंने बार बार यही बताया कि वो इस कार्य से नहीं हटेंगे, ताकि उसका प्राण भी चला जाए उनको कोई परवाह नहीं है। उनके साथ साथ वहाँ पे और जो कोई भी लोग थे उनके साथ हामी भर रहे थे। तो उसके बाद सडनली जो है सोल्जर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, वो काटने लगे पेड़ को, एंड उसी वक्त उनका जो है मौत हो गया, एंड शी डाइड विद इन सम टाइम, कुछ क्षण के अंदर ही, शॉर्ट टाइम के अंदर ही उनका मृत्यु हो गया। एंड उसी के साथ बहुत सारे लोग भी उन स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे। एंड उसके बाद जब ये सब बात राजा को पता चली कि चिपको मूवमेंट उनसे स्टार्ट हुआ, उन्होंने अपना प्राण को त्याग दिया एंड चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया पेड़ को बचाने के लिए, तब राजा को ये मालूम पड़ा और वो बहुत ज़्यादा सॉरी हुए, बहुत ज़्यादा दुख मिला उनको। तो उन्होंने बताया कि वो बहुत सारे गोल्ड के जो कॉइन हैं उन लोगों को देना चाहते हैं, पर वहाँ के जो लोग थे उनको राजा को यही बताया कि नहीं, हम लोगों को ये सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप एक काम कीजिए कि जो पेड़ है वो काटना बंद कीजिए एंड एनिमल को मारना बंद कर दीजिए, यही उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं जो ट्री लवर्स हैं उनमें से सबसे बड़ी जो है वो है अमृता बिश्नोई, जिन्होंने इतनी बड़ी एक जो मूवमेंट है शुरू की। उन्हीं के नाम से ये मूवमेंट चालू हुआ। उनके बाद बहुत सारे लोग थे जो ज्वाइन किए हैं बाद में, पर उन्होंने स्टार्ट किया था। जो स्टार्ट करते हैं कोई भी नई चीज़ को, उनको प्रोत्साहन ज़्यादा मिलता है। उन्होंने इतना बड़ा एक काम किया है, एक पेड़ के लिए अपना प्राण को त्याग दिया है। और ये जो अमृता बिश्नोई है, ये एक्चुअल में राजस्थान के खेजड़ली एक गांव है, राजस्थान में एक छोटा सा गांव है खेजड़ली, वहाँ से वो बिलोंग करती थी एंड वहाँ का ही ये स्टोरी है। एंड वो शायद डाई हुए थे, उनका मृत्यु हुई थी 1731 के करीब, उसी डेट में होगा, उसी साल में। तो ये था स्टोरी जो अमृता बिश्नोई के ऊपर ही है, जो चिपको मूवमेंट उन्हीं ने स्टार्ट किया था। और वो एक बहुत ही ज़्यादा ट्री लवर थी, जिनके बारे में हम लोग अभी यहाँ पे पढ़े हैं। ये बहुत ही छोटा सा स्टोरी है, उनकी बायोग्राफी में मिलता है। अमृता बिश्नोई की बायोग्राफी में बहुत ज़्यादा कुछ हमें देखने को, पढ़ने को, जानने को मिलता है। कुछ पिक्चर्स जो है मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। को तुम लोगों को अच्छा करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि आगे भी ऐसे ही यूज़फुल वीडियो तुम लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो मिलती हूँ और एक नए यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।